Good morning to all. My name is Srikant Thakur, lecturer in electrical engineering from Bose, Cuttack. Today I will teach you the root locus technique of control systems. Next, contents. Here we will study the introduction part, then construction rules, then examples for construction of root locus, then MCQs. Introduction. What is root locus technique? Root locus technique is defined as the locus of closed loop poles obtained when the system gain is varied from 0 to infinity. That means, suppose G of S equal to K by S into S minus 1. Suppose given G of S equal to K by S into S minus 1. So here the closed loop transfer function is G of S by 1 plus G of S into H of S. Suppose H of S is equal to 1. After solving this, the final equation is K by A square minus S plus K. So here this one is called the characteristics equation. The denominator part is called the characteristics equations. So the root locus technique is we also can define as the locus of path of characteristics equation of the closed loop transfer function obtained when the system gain is varied from 0 to infinity. When system gain is varied from 0 to infinity. Right. Next is the root locus technique was introduced by scientist W.R. Evans, and he used the instrument is spiral instrument. He used the spiral instrument. Next, the construction rules. Rule number 1. Rule number 1 is root locus is symmetrical about real axis. Every branch of root locus diagram starts at k equal to 0 from open loop poles and terminates at k equal to infinity, either on open loop zeros or infinity. What is symmetrical? Symmetrical कौन? Suppose this one is real axis, this one is imaginary axis. Symmetrical कौन? जत्तेବେଳେ तमरो एठी भी किछि गोटे प्लॉट हबो, suppose एठी एमती प्लॉट होला, suppose एठी गोटे प्लॉट होला, तो ता माने हमें कहबा कोन symmetrical केतेବେଳେ कहबा the upper part plot is similar to the or identical to the lower part of the plot, ताकू कहबा हमें symmetrical. Next कौन कहै छै? Next, every branch should start at k equal to 0 from open loop poles. Suppose हमें ए इक्वेशन टाको नेबा, suppose दीटा हमर पोल अछि, गोटे पोल अछि s equal to 0 आ गोटे अछि s equal to -1. suppose दीटा पोल अछि, तो हमर कोन हबो जति की पोल तमर कोन कहै छै सब तक ओपन लूप पोल सडा को स्टार्ट हबो k equal to 0 रे, त माने एटू स्टार्ट हबो ए पोल टा एटू स्टार्ट हबो एंड टर्मिनेट्स एट k equal to infinity, either on open loop 0 or infinity. त माने कोन हमर जति एठी 0 था त एठी जेतु 0 नाही तो तमर एटा कोन हबो एमती गोटे जीवो एटा गोटे जीवो जाय कोठी इन्फिनिटी रे तमर क्लोज हबो, इन्फिनिटी रे तमर एटा क्लोज हबो. तो नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम कला को आउट डिटेल्स करेंगे. नेक्स्ट रूल 2 इज फाइंड द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द रूट लॉकस. नंबर ऑफ ब्रांचेस कोन? नंबर ऑफ ब्रांचेस इज दिस वन फ्रॉम ए पोल टू इंफिनिटी जाउछ एटा गोटे ब्रांच, ए पोल टू एटा गोटे ब्रांच आछे. तो एटा सोच गोटे गोटे ब्रांच. तो नंबर ऑफ ब्रांचेस केमति बार करिया? सपोज लेट p इक्वल टू
number of open loop poles, z equal to number of open loop zeros. If p greater than z, then the number of branches will be p, and the number of branches terminating at 0 is z, and the number of branches terminating at infinity is p minus z. तामने कोन सपोज एटा को एग्जांपल न सपोज एथरे नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स केते दीटा अछि, नंबर ऑफ जीरोस केते 0 अछि, काहे कि ऊपर किछ नाही। तो वर्तमान में कोन होला जेतु तमरो दीटा पोल अछि तो तमरो p greater than z, so the number of branches will be p, and the number of branches terminate at 0, जेतु टी 0 तमरो नाही किछि 0 किछि नाही, तो all the branches are terminated at infinity, ता माने all the branches are terminated at infinity, p minus z is the branches are terminating at infinity, ता माने केतरा ब्रांच तमरो infinity रे एंड हबो, तो दीटा ब्रांच तक infinity रे एंड हबो, जोटा कि एटा गोटे एग्जांपल। सपोज जदि z greater than p थांदा तले से केस रे कोन होइतांदा ना तमरो number of branches will be z, number of branches will be open loop zeros. Next is rule number 3, identify the range of root locus. Range of root locus केमिति हम आइडेंटिफाई करिवा? If the number of open loop zeros and the open loop poles, addition of open loop poles and open loop zeros on the real axis to the right side of that point is odd. ता माने कोन सपोज ए जो s plane रे सपोज एटा s plane, सपोज ए जो s plane रे सपोज एठी तमे गोटे पॉइंट नै, ए पॉइंट तमे कैलकुलेट करो, ए पॉइंट टू राइट साइड को देखो, राइट साइड रे ऑल द राइट साइड रे देखो सम ऑफ पोल प्लस 0 इज इक्वल टू ऑड, सम ऑफ पोल प्लस 0 इज इक्वल टू ऑड, ता माने ए पॉइंट देखो तमर केते अछि गोटे पोल्स अछि, आ किछ नै गोटे पोल माने 1 इज ऑड, दैट मींस दिस वन इज द रीजन, दिस वन इज द तमरो रेंज ऑफ रूट लोकस रीजन। सपोज तमे एठी गेस ए पॉइंट रे तमे देखो, ए पॉइंट रे राइट साइड को देखो, राइट साइड रे किछ नै ना पोल अछि ना 0 अछि, ता माने कोन 0, दिस वन इज इवन जेतु तो एटा आउटसाइड द रेंज, आउटसाइड द जोन ऑफ रूट लोकस, तो एटा होछ तमरो जोन ऑफ रूट लोकस किबा रेंज ऑफ रूट लोकस। जदि तुम ए पॉइंट रे चेक करिवो, ए पॉइंट रे चेक करले कोन हम दीटा पोल अछि, ता माने इवन अछि, इवन मींस दिस इज आउटसाइड रेंज हला, तो सेटा कहू। नेक्स्ट असला रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 को कहू छी एंगल ऑफ asymptotes। asymptotes कोन? asymptotes those branches are terminating at infinity, that is called the asymptotes। ता माने कोन जो ब्रांचेस वाला को इन्फिनिटी रे तमरो टर्मिनेट होछि, एटा टर्मिनेट होछि ए ब्रांच टा, एइडा होछि तमरो asymptotes। यार एंगल केते, एंगल ऑफ asymptotes होछि केते थीटा इक्वल टू 2q + 1 * 180 / p - z। हियर q इक्वल टू 0 1 2 नै परियो अप टू n - 1, तो एटा जतो न्यूमेरिकल करिवे आ डिटेल्स तुमको कहै। तो जदि p - z हमरो 1 आसला, देन q को हमें नेबा केते 0 नेबा, q 0 नेले थीटा आसो 180 डिग्री, तो सेंति p - z जतो हमें 2 नेबा, q इक्वल टू दीटा आसो q इक्वल टू 0 1, तमे जले 0 1 पुट करिवो, एथरे जले q वैल्यू 0 पकेबो किबा 0 गोटे पकेबो 1 गोटे पकेबो, तो कैलकुलेशन करले थीटा वैल्यू तार बाहिरबो। तमरे एटा एग्जांपल ले मोर डिटेल्स देखि। नेक्स्ट p - z जदि 3 रहइबो तने q इक्वल टू 0 1 2, तो थीटा वैल्यू सेंति आसी तमरो 60 180 300 and so on। Then rule number 5 is centroid। centroid कोन? The point of intersection of asymptotes on the real axis। तो centroid का फार्मूला होछ कोन? sigma equal to sum of real part of open loop poles minus sum of real part of open loop zeros by p - z, that is centroid formula। Next rule number 6 is breakaway points। It is the point at which root locus get break। तम जो root locus ता तम जो break हला ए जो पॉइंट ता ए पॉइंट को हमें कहबे breakaway point। तो breakaway point रो फार्मूला कोन? dk by ds equal to 0। तो एटा केमिति आसीबो? हम जो तमर एठी जो मु बाहर करथली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो बाहर थला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सपोज आस्तला एठी केते s² - s + k, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आस्तला से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वेट कर दबो 0 इक्वेट करके एथरे k वैल्यू डे बाहर करबो, k वैल्यू जो बाहरिबो से k वैल्यू डे को करिवो डिफरेंशिएट करिवो विथ रिस्पेक्ट टू s एंड इक्वेटिंग टू 0। आफ्टर इक्वेटिंग टू 0 the result जो रूट ता जो तमरो बाहरला
सेटा जो तमरो ब्रेक अवे पॉइंट ऑफ द रूट लोकस। नेक्स्ट आसीबा हमें एग्जांपल को आसीबा। तो सपोज तमरो g ऑफ s h ऑफ s देछि तमरो सपोज g of s h of s देछि k by s into s plus 5 s plus 10 सपोज देछि g of s h of s। तो here the number of zero केते z equal to 0, number of poles केते 3, poles कोड सब अछि at 0 रे अछि -5 रे अछि -10 रे अछि। तो तीनटा पोल्स अछि here p greater than z, p greater than z, तो सो एठी नंबर ऑफ ब्रांचेस केते p जोटा कि 3 and the number of branches terminated at 0 होछि 0 आउ तमरो नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटेड इंफिनिटी होछि p - z जोटा कि 3। सपोज एठी हमें लोकेट करबा एठी अछि तमरो 0 -5 -10 तमरो तीनटा पोल आसिला। तो तीनटा पोल कोन हो तमरो प्रथम जिंस देखो एठी तीनटा पोल जे तो अछि 0 किछि नै, तो एठी 0 रे तमरो टर्मिनेट होबन, जहां टर्मिनेट हो सब तक इंफिनिटी टर्मिनेट हो। तो the number of zeros terminated, number of branches terminated at 0 is 0 and the number of branches terminated at infinity is 3। angle of asymptotes is theta equal to कहथिले 2q plus 1 into 180 by p minus z। जेतु एठी तमरो p minus z होछि केते एठी p minus z equal to केते p होछि 3 minus 0 equal to केते 3। तो p minus जेतु 3 तो आमे कैलकुलेट करबा q equal to 0 1 2 तीनटा बेरी कैलकुलेट करबा। जतबे हमें q इक्वल टू 0 पुट करबा थीटा 1 सपोज थीटा 1 ने q इक्वल टू 0 पकेबा तो केते आसबो 2 into 0 plus 1 into 180 by p minus z is 3, that is coming 60 degree। थीटा 2 रे संधि पकेबा थीटा 2 रे पकेबा संधि 2 into 1 plus 1 into 180 by 3 पुट करले आसबो केते 180 डिग्री। संधि थीटा 3 इक्वल टू आसबो 2 into 2 plus 1 into 180 by 3 equal to 300 degree। तो तमरो तीनटा आसिला थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तमरो आसला केते गोटे 60 डिग्री आसला 180 डिग्री आसला गोटे 300 डिग्री आसला। तो वर्तमान जो एंगल बाहला एंगल ऑफ एसिम्पटोट ताकू हमें केमति करबा आ रहले तमरो सेंट्रोइड। सेंट्रोइड फार्मूला कहली सेंट्रोइड फार्मूला होची sum of the real part of the open loop poles minus the sum of real part of open loop zeros by p minus z। ताम नेठी open loop poles केते कोन कोन अछि open loop poles होची 0 गोटे -5 गोटे -10 त माने 0 -5 -10 माइनस 0 केते 0 तमरा 0 अछि by p minus z होची 3 ताम ने आसी केते 10 15 by 3 -5 ताम तमर सेंट्रोइड आसी -5। तो एबे तमे लोकेट कर तमरा एंगल भारी गला तीनटा एंगल होची गोटे 60 डिग्री। सपोज तमरा एटा होची सेंट्रोइड आसला -5 सेंटर होची एटा तमरा -5 आ गोटे रहला थीटा 1 आसला तमरा 60 डिग्री एंगल। सपोज इट दिस वन इज 60 डिग्री। नेक्स्ट आसला थीटा 2 इज 180 डिग्री एटा आसला तमरा 180 डिग्री। नेक्स्ट आसला थीटा 3 आसला 300 डिग्री। एति कैसे होला नेक्स्ट तबे एबे रेंज तमन देखिबो या भीतर रेंज कोन अछि रेंज कथा कहि तो रेंज कोन करिवो तमे ए पॉइंट देखिबो ए पॉइंट देखले कोन अछि तमर राइट साइड को हमर ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस अछि तमने एटा होछि तमर रेंज। एटी देखो एटी जेतला तमर ऑड नंबर ऑफ 8 केते अछि इवन नंबर ऑफ पोल्स अछि तमने एटा रेंज न आ ए पॉइंट देखो ए पॉइंट तमर तीनटा को ऑड नंबर ऑफ पोल्स अछि तमने एटा होछि तमर रेंज। तामने तमर रेंज कोटा रहला एति की रेंज रहला आ एपडो इंफिनिटी रहला। तामने कोन हबो तमर जो तीनटा को पोल रहला तमर केमिति हबो गोटे याडे जिवो गोटे ए पोल जाके इंफिनिटी रे तमर कंप्लीट हबो आ गोटे पॉइंट एठू बाहर की गोटे याडे कंप्लीट हबो आ सॉरी एठू बाहर की याडे कंप्लीट हबो आ गोटे एमति आसी की याडे इंफिनिटी रे जाके टर्मिनेट हबो। तो एबे केमिति जिवो टर्मिनेट को पॉइंट रे तमर एटा ब्रेक करबो से जिंसटा हमें बाहर करबो ब्रेक अवे पॉइंट्स को। तो ब्रेक अवे पॉइंट्स को कहतली
फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो यार जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आसीबो g of 1 plus g of s h of s तमरो ट्रांसफर फंक्शन रो फार्मूला कोन थला ट्रांसफर फंक्शन रो फार्मूला थला g of s by 1 plus g of s into h of s this one is characteristics equation this one is characteristics equation तो सेही जो characteristics equation नु हमें बाहर करियो हम कोन कहले 1 plus k by s into s plus 1 s into s plus 5 into s plus 10 तो पुट कर देले पुट करला पर हमर फाइनल असला s cube plus 15s square plus 50s plus k equal to 0 असला तो सेथु कोन कहले हमें k वैल्यू टाको बाहर कर देले k वैल्यू टाको रखले आउ सब तक राइट साइड को नै गेले त हम केते समय k equal to -s cube minus 15s square minus 50s that is the value of k next कोन कहले हमें डिफरेंशिएट कर देले k को with respect to s and equating to 0 नेक्स्ट हम कहले डिफरेंशिएट करले डेरिवेटिव ऑफ ds ऑफ कोन -s क्यूब -15s स्क्वायर -50s ताको डेरिवेटिव कर देले तो हमें डेरिवेटिव करिले डेरिवेटिव कले केते आसी डेरिवेटिव ऑफ -s क्यूब केते आसी डेरिवेटिव ऑफ -s क्यूब -15s स्क्वायर -50s इक्वल टू 0 डेरिवेटिव केते आसी -3s स्क्वायर -30s -50 इक्वल टू 0 तो ए जो बाला 3s स्क्वायर प्लस 30s प्लस 50 इक्वल टू 0 जो आसिला एइथरो हमें कोन करबे रूट्स बाहर करबे एथि गोटे रूट्स बाहरियो तीटा रूट्स बाहरियो s1 गोटे s2 गोटे तीटा रूट्स बाहरियो जतरा को सॉल्व करला पर तीटा रूट्स आसला केते ओटा आसला -2.113 -7.88 -7.88 आसला तो एबे बर्तन चेक करो ए जो तीटा रूट्स आसला तीटा के रूट्स तमरो रेंज भीतर रहउ छै कि नै से जिंसटा चेक करो जतरा s1 आसला -2.33 तमरो एटा छै 0 to 5 भीतर तमे चेक करो एटा 0 to 5 भीतर -2 आसियो त हमें सपोज 8 कोटे -2 को आसला -2.113 ये तो तमरो -7. जो नेक्स्ट रूट रहला -7 5 to 7 भीतर रहला सपोज एठी आसला -7.88 ता माने एटा होची तमरो आउट ऑफ रेंज माने तमरो रूट लोकस रेंज नो तमरो रूट लोकस रेंज होची एटा ता माने तमरो s1 इज वैलिड -2.113 इज वैलिड तो सेटा तमरो वैलिड तो आउ नेक्स्ट जोडा 7 पॉइंट थला s2 जोडा थला सेटा होची इनवैलिड सेटा इनवैलिड नो तो कंसीडर करियो -2.113 नेक्स्ट इज द कंप्लीट रूट लोकस इज हियर कंप्लीट रूट लोकस कोन हला देखो जतला तमरो गोटे होची तमरो u2 रूट लोकसटा कोन हला गोटे पोल तमरो इन्फिनिटी रे तमरो एंड हला आउ जो दीटा पोल रहले सेमन को कहले ताकर जेतु एटा जो एसिम्प्टोट्स ताकर एरिया रहला से एरिया रे से ब्रेक करिवे तो से कोन कहले a2 आसले a2 ब्रेक कला जोडे के में बाहला ब्रेक अवे पॉइंट इज -2.113 से पॉइंट से ब्रेक हला इन्फिनिटी को दीटा को कहला इन्फिनिटी को एंड तो एटा हला तमरो कंप्लीट रूट लोकस then MCQ कोन ताले पछि तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट लोकस सेगमेंट्स व्हिच डोंट टर्मिनेट ऑन जीरोस तो को केते नंबर ऑफ रूट लोकस जोडे के टर्मिनेट होनी जीरो रे कोडा जोडे के तोन आंसर होबो सी द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस p - z इज द एसिम्प्टोट्स से एसिम्प्टोट्स ओडा के तोमर इन्फिनिटी रे क्लोज हो जोडे के आंसर होबो सी नेक्स्ट आसीबो फॉर द रूट लोकी which of the following are the starting points कोन को पोल और जीरो को गोडा को स्टार्टिंग होतला जोडा के ओपन लूप पोल्स हम कहली स्टार्टिंग को रूल नंबर 1 ने कहथले ओपन लूप पोल्स आर स्टार्ट्स एट k = 0 तो ओपन लूप पोल्स को स्टार्टिंग होची नेक्स्ट क्वेश्चन 3 होचे at which of the following root loci will be root loci will end माने रूट लोकसटा कोठी एंड हो को पोल और ए होची ओपन लूप जीरोस बी होची क्लोज लूप जीरोस सी होची क्लोज लूप पोल्स डी होची ओपन लूप पोल्स तो एठी आंसर हो तमरो कोन ओपन लूप जीरोस माने ओपन लूप जीरो सेटा भी रूल नंबर 1 अछि ओपन लूप जीरोस जोडा को तमरो टर्मिनेट हो एट द इंफिनिटी और ओपन लूप जीरोस रूट लोकसटा नेक्स्ट होची 4 होची कोन द रूट लोकी ऑफ ए सिस्टम हैज 3 एसिम्प्टोट्स द सिस्टम कैन हैव जतले गोटे रूट लोकस रो तीनटा एसिम्प्टोट्स सहिया दरकार केतोले तीनटा एसिम्प्टोट्स सहिया देखो फर्स्ट ए ऑप्शन इज 5 पोल्स एंड 2 0 सपोज 4 इज 5 0 इज 2 ताने p - z = केते 3 ताने एटा वैलिड काने तीनटा एसिम्प्टोट्स सहिया p - z जतिका सेति नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑप्शन बी इज p = 4 z = 1
Here also p minus z equal to 3. Then option C is 3 number of poles. 3 number of poles, z is 0. Then p minus z is 3. So A, B, C, 3 are valid. 3 are valid. So our option is D option is correct. All the above. Okay. Next, thank you.